મહારાષ્ટ્રના રાજકારણની મોટી ખબર મળી રહી છે। મુખ્યમંત્રી ઉદ્ધવ ઠાકરે જનતા જોગ સંબોધન કરશે। ફેસબુકના માધ્યમથી જનતાને કરશે સંબોધન। એકનાથ શિંદે રાજ્યપાલ પાસે માંગ્યો છે સમય। વિડિયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી માંગ્યો છે સમય, કારણ કે રાજ્યપાલ કોરોના સંક્રમિત છે, જેઓની સારવાર હોસ્પિટલમાં ચાલી રહી છે। આજે બપોર સુધીના એ પણ સમાચાર હતા કે ખુદ ઉદ્ધવ ઠાકરે કોરોના સંક્રમિત છે। બપોરે તેઓનો રિપોર્ટ નેગેટિવ આવી ગયો છે, પરંતુ હવે જનતા જોગ સંબોધન કરવા જઈ રહ્યા છે ઉદ્ધવ ઠાકરે। જે મોટી વાત હતી કે સાંજ સુધીમાં અથવા તો રાત સુધીમાં ઉદ્ધવ રાજીનામું આપી શકે છે, તેને લઈને અણસાર જોવા મળી રહ્યા છે। કેબિનેટમાં પણ તેઓ વર્ચ્યુઅલી જોડાયા હતા। કોંગ્રેસ અને એનસીપી સતત કહેતું આવ્યું છે કે અમે શિવસેના સાથે છીએ, તે અમારો પક્ષ અમારી સરકારમાં હંમેશા સાથે રહ્યા છે, તો અમે પણ શિવસેના સાથે છીએ। પરંતુ શિવસેના સાથે તેના ખુદના ધારાસભ્યો હવે નથી રહ્યા। ખુદ તેઓના શિવસેનાના સેનાપતિ એકનાથ શિંદે જે છે તેઓએ રાજ્યપાલ પાસે સમય માંગ્યો છે અને હવે ટૂંક સમયમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરશે ઉદ્ધવ ઠાકરે। શક્યતા પૂરેપૂરી છે કે મરાઠીમાં સંબોધન હશે તેમનું, કારણ કે મહારાષ્ટ્રની જનતાને તેઓ સંબોધન કરવા જઈ રહ્યા છે। એકનાથ શિંદે રાજ્યપાલ પાસેથી સમય માંગ્યો છે, તેને લઈને પણ વાતચીત થઈ શકે છે। સાથે જ જે ધારાસભ્યો એકનાથ શિંદે સાથે ગયા છે તે ધારાસભ્યોને પણ આ સંદેશો હોઈ શકે છે કે તેઓ આગળ હવે શું કરવા જઈ રહ્યા છે। પરંતુ હાલમાં જે જાણકારી મળી રહી છે, મોટામાં મોટી માહિતી જે મળી રહી છે કે રાત સુધીમાં જે રાજીનામાની વાત છે તે કદાચ આ માધ્યમથી તેઓ સ્પષ્ટ કરી શકે છે। મુખ્યમંત્રી બન્યા, અનેક વખત સરકારને પાડવાના પ્રયાસ થતા હોવાના આક્ષેપ તેઓએ લગાવ્યા। તેઓની પાર્ટીએ નહીં તો તેઓની સાથે સરકારમાં બેઠેલી અન્ય પાર્ટીઓએ તે વાત કરી। ગઈકાલે પણ શરદ પવાર કે જેઓ ભીષ્મ પિતામહ માનવામાં આવી રહ્યા છે, તેઓએ વાત કરી હતી કે ત્રણ વાર પ્રયાસ થઈ ચૂક્યા છે અમારી આ ત્રણેય પાર્ટીઓને અલગ કરવા માટેના, સરકાર પાડવા માટેના, અમે વિકલ્પ શોધી લઈશું તેવી વાત થઈ હતી। પરંતુ આજે આ ઉદ્ધવ ઠાકરેનું પ્રેસ કોન્ફરન્સથી અથવા તો આજે મીડિયા, સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી જનતાને સંબોધન જે થવા જઈ રહ્યું છે તેનાથી અનેક સવાલ ઊભા થઈ રહ્યા છે। કારણ કે બપોર સુધીમાં રાવતે પણ એ નિવેદન આપી દીધું હતું, ટ્વીટ કરીને પણ એ જાણકારી આપી હતી કે હવે એવું લાગી રહ્યું છે કે સરકારની બહાર એટલે કે જે વિધાનસભા છે તે ભંગ થઈ શકે છે, સરકાર હવે હાથમાં ન રહે તેવી પણ શક્યતાઓ છે। તો આ તમામ મુદ્દાઓને લઈને આ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી જનતાને સંબોધન થઈ શકે છે, જનતા સાથે વાતચીત કરવામાં આવી શકે છે। તેઓ પણ ખુદ હવે કોરોના નેગેટિવ થઈ ગયા છે। બપોરે તેઓનો રિપોર્ટ કોરોના નેગેટિવ આવ્યો છે, તો તેને લઈને પણ શક્યતાઓ છે કે જનતા સાથે સંબોધન કરી અને પોતે મુખ્યમંત્રી પદેથી રાજીનામું આપી રહ્યા છે, અથવા તો તેઓ હવે સરકારમાં નહીં રહે, અલ્પસંખ્યક થઈ ગયા છે, તેને લઈને પણ વાતચીત કરી શકે છે। પરંતુ બીજી તરફ એકનાથ શિંદે કે જે શિવસેનાના માનવામાં આવતા હતા કે સેનાપતિ છે, કે જો ઉદ્ધવ ઠાકરે કોઈના પર આંખ બંધ કરીને વિશ્વાસ કરે તો તે છે એકનાથ શિંદે, પરંતુ તેઓ જ્યારે હવે રાજ્યપાલ પાસે સમય માંગી ચૂક્યા છે તો અનેક સમીકરણો બદલાઈ રહ્યા છે અને શક્યતાઓ પૂરેપૂરી છે કે રાજ્યપાલ સાથેની આ મુલાકાત બાદ અને ઉદ્ધવ ઠાકરેના અત્યારના જાહેરાત બાદ સૌથી પહેલા આમંત્રણ આપવામાં આવશે ભારતીય જનતા પાर्टी करना चाहते हैं और यही वजह है कि 5 बजे जो व्हिप जारी करके बैठक बुलाई गई थी सभी विधायकों के, उस व्हिप में ये चेतावनी भी दी गई थी कि जो भी विधायक इस बैठक में शामिल नहीं होगा उसकी सदस्यता पार्टी की तरफ से रद्द कर दी जाएगी। एक चेतावनी थी जो विधायक बगावती हुए हैं उनके लिए। लेकिन अब जबकि 5 बजे खुद महाराष्ट्र की जनता से संबोधन करने वाले हैं तो इस बैठक को रद्द कर दिया गया है और इसका कंफर्मेशन जो महाराष्ट्र सीएमओ ऑफिस से जारी किया गया है उसके मुताबिक सिर्फ अब तक के शेड्यूल में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का यही संबोधन है जो महाराष्ट्र की जनता के नाम होना है। और ऐसे में जो शरद पवार से 6 बजे उनकी मुलाकात है, अगला शेड्यूल वो है, तो जाहिर तौर पर जो बैठक थी जो जानकारी मिल रही है कि वो रद्द कर दी गई है। हालांकि ये बैठक दोबारा कब होगी अब तक उसका शेड्यूल नहीं आया है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने दावा किया था कि उद्धव ठाकरे के पास सिर्फ 15 से 16 विधायक हैं जो कि वर्षा बंगले में मौजूद हैं, इसके अलावा जो बहुमत है वो सिर्फ उनके पास है। तो ऐसे में अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की जनता के सामने क्या रखते हैं ये देखने वाली अहम बात है, सबकी निगाहें उसी पर है। पूछ रहा हूं, बैठक रद्द हुई। न्यूज 18 संवाददाता अमित राय हमारे से जुड़ेगा। अच्छा अमित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो फिलहाल बैठक की बात चल रही थी शायद उसको तो रद्द कर दिया गया है, लेकिन क्या हो सकता है महाराष्ट्र की जनता के लिए उद्धव का मैसेज? जिस तरह से 34 विधायकों का समर्थन पत्र दिया गया है कि एकनाथ शिंदे ही विधिमंडल के नेता बने रहे और जो उन्होंने चीफ व्हिप जो भरत गोगोई है वो उनको बनाया हुआ है, जो उनके साथ इस समय विधायक मौजूद है गुवाहाटी में। तो जिस तरह से 34 विधायकों के सिग्नेचर, उसके ऊपर 3 विधायक और चाहिए यहाँ पर, अगर 2/3 मेजोरिटी चाहिए तो जो बैठक यहाँ बुलाई गई थी वो बैठक को शिंदे का ऐसा कहना है कि जब मेरे साथ ज्यादा विधायक हैं तो बैठक आप कैसे ले सकते हैं, कानूनन जो है ये सही नहीं है।
और उसी समय खबर ये भी आई कि 5 बजे जो है मुख्यमंत्री जनता से संवाद करेंगे फेसबुक लाइव के जरिए। तो उस बैठक को रद्द कर दिया गया, हालांकि 5:15 हो गया है लेकिन अभी तक जो है वो शुरू नहीं हुआ। अभी ये भी खबर आ रही है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे की जो है 6 बजे के बाद जो मुलाकात भी होनी है और शायद इस मुलाकात में कमलनाथ भी मौजूद रहे। तो अभी देखना ये होगा कि आखिरकार क्या कुछ जो है उद्धव ठाकरे कहते हैं, क्योंकि नंबर नहीं है, ये सही बात है, सच्चाई है ये जो मौजूदा परिस्थिति है। तो क्या वो कुछ रिजाइन देते हैं, क्या वो पक्ष प्रमुख भी है शिवसेना के, क्या उस पक्ष प्रमुख पद से भी रिजाइन देते हैं, आखिर क्या कहते हैं उद्धव ठाकरे, इस पर जनता की निगाहें बनी हुई हैं। जी अमित जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बात की है 6 बजे की जो बैठक है, क्या उससे पहले ये जनता के लिए जो मैसेज उसमें स्पष्ट हो सकता है कि महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री है वो मैसेज दे देंगे कि हम अल्पसंख्यक है, हमारे पास इतनी सीट्स नहीं है, हमें रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, इसके बारे में कोई बातचीत हो सकती है? देखिए, हो सकता है, क्योंकि जो मैसेज मुख्यमंत्री कार्यालय से आया है उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि राज्य में चल रही मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति और मौजूदा सियासी हालात पर ही उद्धव ठाकरे बात करेंगे। ये तो स्पष्ट है कि जो चीजें चल रही उसी में बात होंगी। अब कितना नंबर का खेल है, महाराष्ट्र सरकार की जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्या वो अपनी मजबूरी गिनाते हैं? क्योंकि शिंदे का ऐसा कहना है कि अब शिंदे ग्रुप जो है उसके पास ज्यादा एमएलए हैं, तो कहीं ना कहीं वो ये साबित करने में लगे हुए हैं कि शिवसेना हम है, मतलब शिवसेना हमारी पार्टी है। अब उद्धव ठाकरे शिवसेना के नहीं है क्योंकि नंबर हमारे पास ज्यादा है। इन सारी जो कवायद चल रही है उसमें जो है उद्धव ठाकरे जो अपनी बात कहेंगे, थोड़ी देर में जो है ये बात शुरू हो सकती है। हालांकि समय 5 बजे का दिया गया था, थोड़ा लेट है। आखिर क्यों लेट हो रहा है, हम सीएम कार्यालय जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई भी तथ्य निकलकर सामने नहीं आ रहा है। अमित जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो 6 बजे की बैठक की आप बात कर रहे हैं, क्या इसमें भी ये बातचीत होगी कि जैसे हमने पब्लिक को तो मैसेज दे दिया है लेकिन हमारे पास और क्या विकल्प अब खुले हुए हैं? क्योंकि खुद एकनाथ शिंदे ने भी समय मांग लिया है राज्यपाल से। देखिए, एकनाथ शिंदे ने भी समय मांगा है लेकिन अभी राज्यपाल दफ्तर से ये चीजें कंफर्म नहीं हुई है। खबर ये भी आ रही है 7 बजे के करीब जो है एकनाथ शिंदे भी असम में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। तो सबकी निगाहें उद्धव के रोल पे है कि आखिर उद्धव ठाकरे क्या कहते हैं। उसके बाद एकनाथ शिंदे शायद अपना स्टैंड जो है वो सामने रख सकते हैं। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे अमित जी कि जिस तरह से अभी देरी हो रही है, क्या कारण बताया जा रहा है? क्योंकि हमें जो जानकारी थी उस हिसाब से 5 बजे ये फेसबुक लाइव होने वाला था, अभी तक क्यों नहीं हुआ, उसके बारे में कोई जानकारी आपके पास? मुख्यमंत्री कार्यालय से या उद्धव ठाकरे के जो करीबी हैं वो अभी कुछ बताने को तैयार नहीं है इस पूरे मामले में। लेकिन सवाल एक पैदा होता है, जो चिट्ठी एकनाथ शिंदे द्वारा दी गई उसमें 34 विधायकों का समर्थन है, जबकि 37 विधायकों का समर्थन चाहिए, जो कि 2/3 होना चाहिए। नहीं तो दल बदल कानून के तहत जो है सारे लोगों की विधायिका जो है वो रद्द हो जाएगी सदस्यता, उसके बाद चुनाव में जाना पड़ सकता है। तो अभी भी जो सिग्नेचर की कॉपी है उसमें 34 लोगों के सिग्नेचर है। तो क्या जो है इस सारी चीजों पे उद्धव ठाकरे कह सकते हैं? क्योंकि कुछ विधायक अभी भी निकले हैं, ऐसी खबरें निकल सामने आ रही हैं। क्यों लेट हो रहा है इसका जवाब कोई भी अभी नहीं दे रहा है, क्योंकि सारे लोग की निगाहें, चाहे मीडिया जो है वो, महाराष्ट्र की जनता जो है वो, सभी लोग जानना चाहते हैं आखिरकार शिवसेना के पक्ष प्रमुख और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का क्या स्टैंड है यहाँ पर। क्योंकि वो जो स्टैंड बताएंगे वो महाविकास अघाड़ी का स्टैंड होगा। संजय राउत का आपको याद होगा 2 घंटे पहले बयान आया था कि जो भी फैसला लिया जाएगा वो महाविकास अघाड़ी का फैसला होगा, ना कि सिर्फ शिवसेना का, उद्धव ठाकरे का फैसला होगा। तो सबकी निगाहें उसी पे टिकी हुई, आखिरकार ये क्यों लेट हो रहा है। जी शुक्रिया सारी जानकारी के लिए अमित जी। तो જે રીતે ન્યૂઝ 18 સંવાદદાતા જણાવી રહ્યા છે કે 5 વાગ્યાનો સમય હતો, લાઈવ આવવાના હતા, જનતાને સંબોધન કરવાના હતા, પરંતુ 5:20નો સમય હજી સુધી આવ્યા નથી। કારણો હજી જાણવા નથી મળ્યા કે કેમ તેઓ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી જે 5 વાગે લાઈવ આવવાના હતા હજી સુધી નથી આવ્યા।